Hi everyone, very good afternoon, all of you. Good afternoon, and we are today very excited to talk to you about the day that you were all waiting for, जिसका इंतजार था, वो बड़ा opportunity, वो आ गया है, उसका नाम है INICET. This is the most important thing I want to start off before I ask Dr. Deepti to talk about it today. Look at the exam as an opportunity, not as a problem. INICET कुछ छीनने के लिए नहीं आ रहा, कुछ देने के लिए आ रहा है. इट्स अ मौका, एक अपॉर्चुनिटी है. अपॉर्चुनिटी के लिए सारे मेरे बच्चे क्या करेंगे? एक्साइटमेंट लेके आएंगे. मुझे एक्साइटमेंट चाहिए बेटा आपसे सबसे. Right. So, very good evening to everybody out there. And first of all, I'm so happy to be back with all of you. And finally, we could get some time off from our, absolutely crushing schedule. But, we had to do this. So, we had to be with all of you today here, not just to give you the moral support, but also to tell you that you are absolutely ready, right? So आप समझो मेरी बात कि हमने आपको बहुत पढ़ा दिया है. Absolutely, you are ready and you are ready to the best of your ability. And as Dr. Sumed said, जब हम तैयार हैं तो डरना नहीं है. Yes, we are only going to look forward to the exam with positivity. We want it to happen so that we reach to the other side soon. Yes or no? So it is an opportunity, right? We're all going to break the barriers of this exam and reach to the other side. Okay? And I see lot of students are saying, sir, कुछ याद नहीं आ रहा. ऐसा लगता है कि याद नहीं आ रहा. एग्जाम वाले दिन सब वापस आ जाएगा. I just want you to remind you that just to give you the final brush up, we have just concluded the marathon session on DAM's YouTube channel. Massive coverage by the teachers in a period of maybe around 12 hours. सब कुछ cover किया है. If you have not done it, एक बार उसका नीचे से quick review मारने में कोई हर्ज नहीं. Absolutely, yes. Yes, we understand that, many of you had to travel to far-flung places. Yes, and you had to, it's a different city, it's a different place. Everything feels different. It's not the comfort zone of your home. And that brings some anxiety. But मुझे लगता है कि at the same time, you need to think that, you are ready for anything and everything that is going to come your way. Please do not feel nervous. Do not feel that अभी पूरी तैयारी नहीं है. वो हमेशा ऐसा लगेगा बच्चों. But you have to remember कि जो भी आपने पढ़ा है, अभी हम उसे बताएंगे कि how to try and do the best in the exam and now in the time left. But सबसे important चीज that I want my students to know is you need to have trust on the process that you have gone through, and number two, you need to have faith in your abilities. ये दो चीजें हमें याद रखनी है ना? Trust on the process that we are going through, and definitely yes, have full faith in your abilities. आप किसी से भी कम नहीं हो, बिल्कुल भी कम नहीं हो. Yes? अच्छा, आगे जाने से पहले ना मैं एक लाइन दिखाना चाहता हूँ मेरे सब बच्चों को. क्या लिखा है मैंने यहाँ पे? अपना टाइम अपन खुद लाएगा. वही आ गया बेटा टाइम. वो टाइम आ गया जो हम लेके आएंगे नेगेटिविटी की जगह पॉजिटिविटी में. इंस्टेड ऑफ नर्वसनेस कन्वर्टेड इनटू एक्साइटमेंट. यू आर गोइंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी. तुम एक प्रॉब्लम के लिए नहीं, एक अपॉर्चुनिटी के लिए जा रहे हो. गो एंड अटैक इट. और दूसरा ना ये सोचो कि सब अच्छा होगा, सब अच्छा होगा. हैव दैट फायर इन द बेली. और बिना एंजाइटी के जाएंगे, उसको एक मॉक टेस्ट की तरह देंगे. जस्ट गिव इट लाइक अ मॉक टेस्ट. मैं ये कह रहा हूं कि हाउ वी लुक एट द सिचुएशन चेंजेस एवरीथिंग. इफ यू एंटर द एग्जाम हॉल थिंकिंग आई एम एंटरिंग इनटू अ प्रॉब्लम सिचुएशन, टेंशन होगी. इफ यू एंटर लाइक एन अपॉर्चुनिटी के लिए जा रहा हूं, मैं एक लॉटरी खरीदने जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू गो इनटू इट टू सी गेट इनटू द टॉप इंस्टीट्यूट्स, यू विल फील मोर एक्साइटेड अबाउट इट. Now, some important things that we wanted to discuss today. We want to tell you that this exam would have 4 blocks, 50 MCQ each, 45 minutes. So which is the most important block for all of you? Anyone? सबसे important block कौन सा है तुम सबके लिए? पहला block. Yes. Many students when they start, they go slow. तुमने पहले क्वेश्चन से फास्ट जाना है. सब बच्चे कमेंट में लिख दो, आई विल गो एग्रेसिव फ्रॉम द गो.
I will start at a good speed from the first go. First go, And yes. एब्सोल्युटली आई थिंक ये बहुत ही वाइटल बात है. द फर्स्ट सेशन ऑफ्टन इज गोइंग टू अफेक्ट योर फर्दर परफॉर्मेंस. तो बहुत ज़रूरी है, जैसे सर ने कहा, कि फर्स्ट ब्लॉक में ही अपनी स्पीड मेंटेन करके रखेंगे. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड फर्स्ट ब्लॉक में कुछ चीज़ों का भी ध्यान रखेंगे. वन ऑफ विच आई वॉन्ट टू टेल यू इज डू नॉट गेट स्टक ऑन वन टफ क्वेश्चन. ठीक है, मान लो एक टफ क्वेश्चन आ भी गया, ठीक, तो उस पर स्टकअप नहीं होना है. प्लीज अंडरस्टैंड दिस. पहले राउंड में जब आप फर्स्ट ब्लॉक देखना शुरू करते हो, जस्ट गो स्मूथली, और जो नहीं आ रहा है पहली बार में उसको एक बार के लिए छोड़कर आगे बढ़ते जाएंगे. प्लीज डू नॉट गेट स्टक ऑन वन टफ क्वेश्चन. इट मे बी देयर, इट मे नॉट बी देयर, इट इज गोइंग टू बी द सेम फॉर एवरीवन. देखो, जब सिचुएशन ऐसी टाइट होती है ना, it is tight for everyone. So what is more important is how calm are we in that situation, because that's when you can think more practically, and your actions are going to determine what the outcome is going to be. Paper to ban chuka hai. Yes, do we understand this? And it is the same for everyone. But har bachcha actions alag alag leke jata hai, and that's where the outcome lies. So you have to stay calm, even if you get one or two questions which you seem are outliers. ठीक है, उनको देखकर आगे बढ़ेंगे और फिर टाइम होगा तो वापस आएंगे. ओके. अच्छा, दूसरी चीज, हाउ मेनी क्वेश्चंस विल यू लीव इन ईच ब्लॉक? पहले ब्लॉक में बहुत सारे क्वेश्चन मत छोड़ देना बेटा. इफ यू लीव टू मेनी क्वेश्चंस इन द फर्स्ट ब्लॉक, यू विल नॉट हैव द स्कोप फॉर द फाइनल ब्लॉक. याद करना है, इन दिस पेपर यू हैव सीन, आपने इसी चैनल पे बहुत सारे, पिछले 25 साल में आपने बहुत सारे यहाँ पे टॉपर्स देखे होंगे इसी चैनल पे. हर चैनल में हर जगह जो भी टॉपर आएगा बोलेगा एग्रेसिव जाना है, एग्रेसिव जाना है, 190 प्लस करने हैं. टू डू 190 प्लस you need to do leave maybe 2 or 3 questions in a block. उससे ज्यादा मत छोड़ना, शुरू कम छोड़ना. बहुत ज्यादा क्वेश्चन रिव्यू के लिए मार्क मत करना. INICET में if you mark a question for review and if you don't save it in the end, it will not be marked as a score. बहुत सारे क्वेश्चन मत छोड़ना, बहुत सारे मार्क फॉर रिव्यू मत करना. डोंट मेक इट टू कॉम्प्लिकेटेड. हर सेट में कुछ वन लाइनर होंगे, हर बार होते हैं वन लाइनर होंगे, उनको जल्दी खत्म करेंगे, क्योंकि आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता. सो यू हैव टू गो फास्ट ऑन वन लाइनर सो दैट वो जो लंबे क्वेश्चन आएंगे ना, मोर देन वन आंसर करेक्ट, 1+2 इज करेक्ट, 3+4 इज करेक्ट, उनके लिए टाइम बच जाए. So this paper would have 4 blocks, 50 questions each. Time per question is less than a minute. Don't spend too much time on direct questions. Direct question, go with instinct. Direct question जो instinct बोल रही है ना बेटा, वही सही है. जो तू overthink कर रहा है ना, वहां गलती हो रही है. Go with instinct. ठीक है? Indirect question में eliminate करेंगे. Very, very important. Like Dr. Sumer has said, there are certain things that I would definitely want my bachas to understand. Number one, when you start overthinking, that's where the problem begins. So जैसा सर ने कहा, अगर क्वेश्चन का हर ऑप्शन is like a fact-based option, you either know it or you don't know it. Yes, or you can assess it with some certain words. Please उनमें ज्यादा मत सोचो. ठीक है, thinking about rare syndromes, thinking about ifs and buts, हर क्वेश्चन में if and but नहीं लगाना. Okay, so if it is a single straight question, just try and answer as sir said with your first instinct, and most of the times it is correct. The second thing, if it is a short clinical vignette, okay, then you need to know that every line of that clinical vignette will have one keyword at least. Right? It could be age, it could be some presentation, it could be some investigation that they have given, it could be some tumor marker. So in short clinical vignettes में, every line will have at least one, sometimes 2 keywords. हर line में से वो keyword ढूंढने की कोशिश करो, put them together and you will get the answer. It is very essential. That is why अगर आप देखो, इस बार का AIMS capsule, the entire concept of our AIMS capsule was based on keywords. कि अगर आपको वो keywords उस वक्त strike कर गए, आता तो सब है, पढ़ा तो सब है, but important है कि in the end
क्या वो कीवर्ड्स हमें स्ट्राइक करेंगे या नहीं, एंड दैट्स वेयर the moderate questions lie. So there are easy questions and there are moderate questions. Moderate questions will need some analytical thinking, okay? And that's where you need to identify the keywords, put them together. इसीलिए AIMS capsule is a super tool to go through in the last day. It will give you all those keywords and just the keywords that you need for your moderate MCQs, okay? अच्छा जो ना एक और चीज है, इफ यू डोंट नो अ क्वेश्चन एंड दैट इज व्हाट वी हैव रिटन इन द एंड, आर्ट ऑफ थिंकिंग इन अ क्वेश्चन यू डोंट नो. इफ यू डोंट नो अ क्वेश्चन, डोंट पैनिक. हो सकता है कुछ ऑप्शन के बारे में पता हो, ट्राई रूलिंग आउट, इसको बोलेंगे एलिमिनेशन. इफ यू डोंट नो अ क्वेश्चन डायरेक्टली यूज एलिमिनेशन. यू विल एलिमिनेट वन चॉइस, टू चॉइस, आखिरी दो चॉइस में फंस जाएंगे. क्या करना है? सो इन द फाइनल टू चॉइसेस आई विल टेल यू द स्किल. The idea is you pivot the subject. सब्जेक्ट बदल दो. सपोज मेडिसिन का क्वेश्चन है, दो चॉइस आ गए, नहीं निकल पा रहा, फिर फिजियो के हिसाब से सोचेंगे, पैथो के हिसाब से सोचेंगे, माइक्रो के हिसाब से सोचेंगे. चेंज द प्रोबेबिलिटी फ्रॉम 50-50 टू 60-40. प्रोबेबिलिटी इंप्रूव करो, देन टेक द एजुकेटेड गेस. फिर जाके गेम जीतेंगे. सारे प्रॉपर एजुकेटेड गेस करते हैं, एलिमिनेट वन चॉइस, एलिमिनेट टू चॉइस एंड गो विद पिवटिंग. चेंज द ऑप्शन, चेंज द आइडिया. सपोज सर्जरी क्वेश्चन है, देखो नहीं आ रहा, रेडियोलॉजी के लॉजिक से सोच, हो सकता है बन जाए. सपोज एनाटॉमी के लॉजिक से सोच, बन जाए, तो फिर उसको क्लिक करेंगे. इसको एजुकेटेड गेस कहते हैं. एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद है ट्रांसफॉर्म में बात की थी, गेस इट ट्रांसफॉर्म. यस यस एब्सोल्युटली. एंड एक और चीज जो आई वुड वांट टू हाईलाइट, जो मैंने गेस इट में भी बोला था, नंबर 1, व्हेन यू आर स्टक इनटू ऑप्शंस, दो ऑप्शंस ऐसे होते हैं जो हमें क्लोज लगते हैं, दोनों सही लग रहे हैं, ए भी सही है, बी भी सही है, मगर फिर हमें लगता है यार ए तो ऑब्वियसली करेक्ट है, लेकिन बी हम सोच सोच के करेक्ट बनाते हैं कि इफ ऐसा होगा देन वैसा होगा, देन बी विल बिकम अ करेक्ट आंसर. सो नो, अगर आप दो ऐसे ऑप्शंस में स्टक हो वेयर वन इज सीमिंगली करेक्ट while the other has to be proven to be correct, then if you have to mark one, go with the one which is more obviously correct. Go with the one which is more obviously correct. Okay, very very important. जबरदस्ती आंसर बना रहे हो वो गलत निकलेगा, जो इंस्टिंक्ट कह रही है वो ठीक निकलेगा. डायरेक्ट क्वेश्चन में इंस्टिंक्ट वो है जो टीचर ने पढ़ाई है, वो मार्क करना है. Okay, now another important thing that we need to understand. आज क्या करना है जो अब टाइम बचा है? Yes, now last day is the time to do rapid reading, not in-depth reading. आप मेरी बात समझ रहे हो? It has to be rapid keywords, most high-yielding pointers to be done so that you resurface them. ठीक है, ताकि वो जब चाहिए हो तब एकदम सामने आ जाए. Right, and that is why our two top resources for you will be the AIMS capsule and the INICET PYT PDFs. Together they are rank busters. Yes, and they won't take much time. फिर मैं ये भी बताऊंगी कि कल सुबह क्या कर सकते हो, but आज के लिए yes, the AIMS capsule and the INICET PYT PDFs would be our top picks because I think together they give a very very awesome coverage. Okay. और अगर ना टाइम कम होना तो फर्स्ट सेकंड ईयर जरूर देख लेना. ऑब्स गाइनी, सर्जरी, मेडिसिन, पीएसएम, इनको जरूर देख लेना. छोटे सब्जेक्ट ना फिर भी देखो आते हैं, मुझे पता है, मैंने पढ़ाया, देखो आते हैं, तू चिंता मत कर. बड़े वाले सब्जेक्ट जो ज्यादा आते हैं, आईएनआई पेपर हैज बेसिक साइंस प्रीडोमिनेंस, उसको पहले करते हैं. एक बच्चा पूछता है अल्फा कार्ड करेंगे कैप्सूल करें. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट. आई एम गोइंग टू आंसर योर क्वेरी इन अ मोमेंट. उससे पहले मुझे लगता है आईएनआई पीवाईटी पीडीएफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. आईएनआईसीटी में दे रिपीट द सेम टॉपिक्स. एम्स कैप्सूल के नीचे जो टीचर ने कीवर्ड्स के पीडीएफ डाले हैं वो देखने बहुत जरूरी है. बिलो एवरी वीडियो इन योर डैम्स लेक्चर यू हैव अ पीडीएफ लोडेड बाय द टीचर, एनोटेटेड पीडीएफ. इट्स अ गुड आइडिया टू गो थ्रू देम. इट विल सेव अ लॉट ऑफ टाइम. Another point that I would want to tell before Deepti takes over is इस पेपर में बहुत सारे तरह के क्वेश्चन होंगे. मल्टीपल कॉम्बिनेशन, मैच द फॉलोइंग, असर्शन, रीजनिंग. When you read, okay, एक बात बताओ, when you look at multiple combination questions, एक बार तुम्हें डर लगेगा, यार ये क्या है, 1 + 2 is correct, 2 + 3 is correct. So my suggestion is, and I'm sure Deepti would agree, and this is something I learned actually from her, कि whenever you see a choice, अगर वो choice तुझे लगता है ठीक ठीक है,
वो ठीक ही होगी, क्योंकि मल्टीपल ऑप्शंस है Yes. ना, वो ठीक ही Multiple होगी। completion में फिर very उसके बाद important. कॉम्बिनेशन को लगा के फिर सोचेंगे कौन सा कॉम्बिनेशन बेटर बैठता है। इट विल बी मोर इजी। परफेक्ट मत ढूंढियो, परफेक्ट आंसर मत ढूंढियो। दूसरा क्या है, मैच दी फॉलोइंग में भी एक दो अगर मैच हो जाए ना तो बाकी भी आसानी से हो पाते हैं। तो इन क्वेश्चंस को रैंक बनानी है। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे, 40-50 ऐसे होंगे, मल्टीपल कॉम्बिनेशन, मैच दी फॉलोइंग, असर्शन, रीजनिंग, ये गेम रैंक बनाने वाले क्वेश्चन, इनको जरूर ध्यान देना है। Yes, very essential. मैंने देखा है कि एम्स में नाउ द नंबर ऑफ मल्टीपल कंप्लीशन क्वेश्चंस इज इंक्रीजिंग, और वहां पे बहुत सारे बच्चों को एक सेटबैक लगता है, बिकॉज इन मल्टीपल कंप्लीशन यू डोंट हैव टू नो वन बेस्ट आंसर, यू हैव टू नो ऑल द पॉसिबल विच कुड बी करेक्ट। तो पहली चीज जो सर ने बोली कि अगर आपको वो स्टेटमेंट करेक्ट लग रही है बट यू आर नॉट वेरी श्योर, इंक्लूडेड इन योर करेक्ट ऑप्शन, वेरी वेरी एसेंशियल। दूसरी बात, इन मल्टीपल कंप्लीशन के ऑप्शंस में एम्स वाले कुछ कैरेक्टरिस्टिक वर्ड्स बता देते हैं विच विल हेल्प यू टू नो कि ये स्टेटमेंट इंक्लूड करनी है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको क्विकली बताऊंगी, पिछली बार दे हैड आस्क्ड अबाउट एक्टोपिक प्रेगनेंसी के टेस्ट, ओके, जिसमें से दो ऑप्शंस एवरीबडी कुड मेक आउट कि 1 को भी इंक्लूड करना है, 2 को भी इंक्लूड करना है। पीपल वर कंफ्यूज्ड अबाउट द ऑप्शन ऑन सीरम प्रोजेस्टेरॉन लेवल्स, क्योंकि वो स्टेटमेंट लंबी सी थी, कंफ्यूजिंग थी, एंड वी डिड नॉट नो वेदर टू इंक्लूड इट और नॉट, मगर उसमें एक कीवर्ड डाल दिया था और उसकी वजह से वो पूरा स्टेटमेंट आसान हो गया। कैसे? उन्होंने लिखा serum progesterone is diagnostic for ectopic pregnancy as this but because of levels it is this। तो 2 लाइन का स्टेटमेंट था, मगर जो उन्होंने एक वर्ड डाल दिया इट इज डायग्नोस्टिक, वो गलत है, राइट? सो नाउ यू नो, वंस वी इंक्लूड वर्ड्स व्हिच आर वेरी स्ट्रॉन्ग, डायग्नोस्टिक है कोई चीज, यस, ऑलमोस्ट ऑलवेज है, सुपरलेटिव ना, 100% है। जो सुपरलेटिव बात लिखी हो कि सब मरीज ठीक हो जाएंगे, सब मरीज डायग्नोज हो जाएंगे, ये तो हर लोग इसका तो कोई साइड इफेक्ट ही नहीं है, वो गलत निकलेगा। So serum progesterone, you all know, can never be diagnostic. Yes, that is why it is not the main test for ectopic pregnancy. It even cannot rule out ectopic pregnancy clearly. So इसीलिए when you find, this is especially important for multiple completion questions, जहां पे मेजॉरिटी स्टूडेंट्स आर फीलिंग स्टक, यू नो व्हाई? आपको लगता है पेपर अच्छा करके आते हो, बट बाद में आपको पता लगता है बिकॉज वो मल्टीपल कंप्लीशन था, शायद आप एक स्टेटमेंट डालना उसमें भूल गए या एक स्टेटमेंट ज्यादा डाल दिया, राइट? सो बी केयरफुल। एक और, अगर ना कोई भी लाइन ना समझ आए ना, उसको अपनी मदर टंग में ट्रांसलेट कर लेना। जैसे उसको मदर टंग में ट्रांसलेट करोगे, अगर वो लाइन अटपटी होगी ना तो बैठ जाएगा। जैसे सपोज देयर विल बी नो साइड इफेक्ट ऑफ दिस टाइप ऑफ थेरेपी, इंग्लिश में नहीं समझ आ रहा, इस तरह की थेरेपी का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। अरे क्या बात कर रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है? गलत लाइन है, यू अंडरस्टैंड? ट्रांसलेट इनटू योर मदर टंग, इट विल हेल्प यू। रूल आउट ऑप्शंस, एलिमिनेट ऑप्शंस, यूज द एजुकेटेड गेस, पिवट द सब्जेक्ट, जो भी हमने इतने दिनों में ट्रांसफॉर्म में बात की, सब यूज करेंगे, सब कुछ यूज करेंगे बेटा। Also very very essential, when you are looking at these options, please remember this, कि we will read slow. I did talk about it in the guessed technique as well. क्वेश्चन को पढ़ने में थोड़ा टाइम लगाओ, बिकॉज वेन यू आर रीडिंग इट वेरी फास्ट यू आर स्किपिंग दी वर्ड्स। उसमें बच्चे क्या करते हैं, यू देन स्टार्ट सीइंग कीवर्ड्स सिलेक्टिवली। कॉन्फिडेंस जरूरी है मगर ओवर कॉन्फिडेंस नहीं। सो प्लीज रिमेंबर, रीड द क्वेश्चन स्लोली, जैसे मैं अभी आपके लिए बोल रही हूं, so that you have a processing time, right? Try and speak it to yourself, not loud. You will not be allowed to speak loudly, but speak it to yourself, right? Imagine you passing a finger underneath the words. करते थे ना छोटे होते, या एक लाइन लगाते थे, so that gives you time to process. So मेरी बहुत ही kind request है, process the question a little slow. Don't try and read fast कि then I will see the options. No, process it a little slow. Give yourself time to identify all keywords. ठीक है?
और ना एक तो चीज ना मेरे पास बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर टेंशन हो रही है, नर्वसनेस हो रही है, पिछली बार का फेलियर याद आ रहा है, आज तक तो कभी जीता नहीं हूँ ये याद आ रहा है, क्या करूं सर, घबराहट हो रही है। सो याद करना है, अभी जो वुमेन क्रिकेट मैच था ना जहाँ इंडिया जीती थी, देखा था, उसमें वो बोला था ना उस लड़की ने कि जस्ट स्टैंड स्टिल, गॉड विल फाइट फॉर यू। ये लाइन मैं तुम्हें आज के लिए देके जा रहा हूँ। ड्यूरिंग द एग्जाम जस्ट कीप इट इन योर माइंड, बी हैव अ कूल माइंड, ही विल फाइट फॉर यू, हिज प्लान इज ऑलवेज बिगर देन आवर विशेस। उसने सोचा होगा ना हमारे लिए, वो सोच लेगा ना। तुझे तो अपना अच्छा करना है ना, सिर्फ पेपर करने पे फोकस कर, आउटकम मत सोच। अच्छा पेपर कर, एक्साइटेड होके कर, पॉजिटिव होके कर, बोल बोल के कर, अपने आप से बोल के कर, ट्रांसलेट करके कर, एलिमिनेट करके कर, you will come back as a champion. Come back as a champion that you are. His plan is bigger than my wishes. Just stand still and God will fight for you. Now, please remember, अभी इस वक्त हम कुछ नया नहीं करेंगे. It is absolutely okay अगर आपने एक मॉक देने का प्लान किया था और अभी नहीं कर पा रहे हो. It is absolutely fine. No new things now, no detailed things now. It has to be a quick brush up of all possible keywords in the most important topic. Nobody is going to even touch anything new now. जो अभी तक किया है उसको recap करने की कोशिश करो. That's why we are telling you to go through the AIMS capsule and the INICET PYT PDF, so that you are focusing on what is commonly asked, so that you know how to commonly process the information. ठीक है? Is that understandable? So you will all promise me nothing new now. Okay, that's it. Stop. कुछ नया नहीं पढ़ना है. No unknown topics now. No new things now. No updates now. No more random revision sessions. Okay, spend this time with yourself and with something which builds your confidence. जो अभी तक करते आए थे उसको पढ़ने में हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है. ठीक है? और ना अपने आप को एक ही चीज बतानी है, ये ना जरूरी है अपने आप को बताना है कि मैं इसके लिए बना हूं. आई बिलोंग टू द टेबल. हाथ खड़ा करो और बोलो, आई बिलोंग टू दिस टेबल, आई डिजर्व टू बी इन एम्स, आई डिजर्व टू बी इन द सेंट्रल इंस्टीट्यूट. अपने आप को नेगेटिव सेल्फ टॉक मेरा कोई बच्चा नहीं देगा. हम अपने आप को खुद ही सोचते हैं मैं इस टेबल के लिए नहीं हूं, है तो उसके लिए. मैं कह रहा हूं, मैंने पढ़ा है, मैंने, मुझे पता है कि तू उस चीज है तो काबिल. लड़ेगा, लड़ेगा, यू विल फाइट इट आउट. अटेम्प्ट एग्रेसिव, नेगेटिव मत करना, एग्रेसिव अटेम्प्ट करना. बहुत ज्यादा मत छोड़ के आना, पेपर खराब हो जाता है. जरूरी है ये बातें देखना. And believe me, the difficulty level is going to be like your CBT. So please do not unnecessarily worry. हर क्वेश्चन पे ये मत सोचना कि ये तो एम्स का क्वेश्चन है, कुछ अलग आंसर होगा. बिल्कुल भी ऐसा नहीं है. एम्स वाले कई बार एकदम क्रैश बेसिक्स पूछ रहे हैं. They are going down to बिल्कुल basics and application of basics. Do not think that every question has a twist. नहीं होगा. ठीक है? हर क्वेश्चन में ट्विस्ट नहीं होगा. एम्स इज मोर नाउ अबाउट डेप्थ ऑफ कंटेंट. सो इट विल बी लाइक योर सीबीटी. कुछ क्वेश्चंस में आपको एनालिसिस या एनालिटिकल थिंकिंग की जरूरत पड़ेगी. वो होंगे आपके शॉर्ट क्लिनिकल विनियट्स. ठीक है? अपने आप को ना जो आखिरी दिन पे ना जो मैटर करेगी बात ना, वो यही है कि क्या मैं अपने आप से क्या बात कर रहा हूँ, अपने आप से क्या बात कर रहा हूँ, अपने आप को आज क्या कह रहे हो. आज बोलो कि यार मैं यहाँ तक आया हूँ, वो भी उसकी मर्जी थी और वो चाहता है कि मैं आगे जाऊं, इसीलिए मुझे कल का एग्जाम देने की अपॉर्चुनिटी दे रहा है. नहीं तो अब तक पिछले साल की काउंसलिंग कर देनी थी उन्होंने काउंसलिंग नहीं की. ये काउंसलिंग क्यों डिले हो रही है? क्यों डिले हो रही है? क्योंकि वो चाहते हैं कि तू INICET का एग्जाम फोड़े, कि तू एम्स में जाए, तू PGI चंडीगढ़ में जाए. पॉजिटिव टॉक, नेगेटिव टॉक की तरफ नहीं जाएंगे. सर ये क्यों नहीं हो रहा, वो क्यों नहीं हो रहा. जो हो रहा है, इट इज अ ग्रैंड डिजाइन मेकिंग यू द चैंपियन दैट यू विल बिकम. तो वो पहुंचने के लिए कर रहा है. सो जस्ट डू सम पॉजिटिव सेल्फ टॉक. रिवाइज करने के लिए मैंने पहले ही बता दिया, INICET का जो PYT PDFs हैं, दे आर द वंस टू बी सीन, दे आर द वंस टू बी सीन. वो आखिरी में आराम से काम करेंगे. ओके, प्लीज रिमेम्बर, आज रात 9 बजे के बाद हम नहीं पढ़ेंगे.
ठीक है? सो आज 9 बजे तक जो देखना मैं तो है 10 देख बजे लो। तक भी पढ़ लेता हूँ, बाकी मैडम की मर्जी 9 है। से 10 9 से 10 हम रिलैक्स करेंगे। वी विल पुट आवर माइंड अवे फ्रॉम पढ़ाई फ्रॉम 9 to 10 PM and we will definitely sleep by 10 or a maximum of 10:30 PM. ठीक है? सो बफर जोन है 9 से 10 उन लोगों के लिए जिनको एंजाइटी हो रही है, ज्यादा ही पढ़ना है, बट अदरवाइज close your books, your copies, everything by 9 PM. 9 to 10, spend time with your parents, right? Whoever is around, try and relax. Don't think of exam. And by 10 or 10:30, please go off to sleep. Okay? और एक और चीज जो मैं कहना चाहता हूँ कि जो एक चीज है जो हम बहुत सारे लोग, आई थिंक मैं और दीप्ति हम सब भी वी टेक अ लॉट ऑफ कॉफी। हमें ना एग्जाम वाले दिन ना 5 बजे तक कॉफी पीते 5 बजे के बाद कोई कॉफी नहीं पिएगा भाई, सोना बहुत जरूरी है। 5 बजे के बाद कोई कॉफी नहीं पिएगा, ठीक है? कोई कॉफी नहीं पिएगा, डन, नो कैफीन। एक और चीज है जो बताना चाहता हूँ जो बड़ी जरूरी है। सपोज करते हैं रात को नींद ना आए, ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है, होता है बेटा, कोई बड़ी बात नहीं है। लोग पूरी रात जाग के अगले दिन पूरा ऑपरेशन भी कर लेते हैं, घबराइयो मत। इतना Yes. ज्यादा लोड मत लियो कि सर मैं सो नहीं पाया, मेरा पेपर खराब हो जाएगा। कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, तू अच्छा कर लेगा। पूरी रात जागने के बाद भी कई लोग सर्जरी भी कर लेते हैं, I तूने देखा। completely agree. तो I घबराना नहीं think है, that अपने is आप the को इतना best लोड मत thing. डालना कि सर मैंने किसी इन्फ्लुएंसर को सुन लिया, उसने बोला रात को सोया नहीं तो अगले दिन पेपर खराब हो जाएगा। कुछ नहीं होगा, तू जीतेगा बस। I know this is one of the best things that Dr. Sumer has said. बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ऐसा इतना ओवर स्ट्रेस भर दिया गया है कि सोना है सोना है सोना है, कि वो ये सोच सोच के कि सोना है सो ही नहीं पाते हैं। एंड द मॉर्निंग में द फीलिंग दैट दे गेट इज बिकॉज आई हैवंट स्लेप्ट वेल, आई एम नॉट गोइंग टू डू वेल. No, it is incorrect. And as Dr. Sumer said, your brain has a lot of elasticity, okay, and it is going to be there with you when you need it. All you need to tell yourself is, come what may, I am going to do well. There is nothing standing me between me and this exam. Okay, don't let anything come in between. Okay. और ना एक चीज और है, अगर अभी अकेले बैठे हो, हॉस्टल में पढ़ रहे हो और आईएनआई का पेपर आ गया है, लग रहा है अब क्या करूं, मैं बताता हूँ। सबसे बढ़िया बात यह है कि वी नीड टू टेक द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड। लेकिन गॉड तो दिखाई नहीं देंगे, तो अब किसकी ब्लेसिंग्स लोगे? गॉड ने अपनी तरफ से आपके पेरेंट्स भेजे हैं आपके पास, सो डू कॉल देम अप, फोन करो, मम्मी से आशीर्वाद लो, पापा से लो। टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू से कि जो होगा अच्छा होगा, मैं मेरी मेहनत करूंगा, आप लोग की ब्लेसिंग्स चाहिए, बस डू इट। टेक सीक ब्लेसिंग्स फ्रॉम योर पेरेंट्स, क्योंकि भगवान खुद तो आ नहीं सकते ना, तो उन्होंने पेरेंट्स को दिया है ना बेटा, उनसे इस समय बात करें, यू विल फील गुड। एंड मेरे और डॉक्टर सुमेर की तरफ से दो बहुत स्पेशल चीजें आपके लिए। एक, जादू की झप्पी। यस, सो वी आर सेंडिंग आवर जादू की झप्पी टू यू। और दूसरा, वी आर सेंडिंग आवर पैट ऑन योर बैक। ओके, रिमेंबर, हम पीछे खड़े हैं और बोल रहे हैं विजयी भव। ठीक है, सो टू एवरीवन, विजयी भव, यू विल डू वेल। एंड हमारी तरफ से एक कस के जादू की झप्पी फॉर एवरीवन। ओके, यू विल डू वेल, you have it in you, you are the best brains, you are the future we people are looking out for, right? You are our legacy. Yes, you have everything that you need, okay, to get successful. Okay. कल का दिन स्पेशल है क्योंकि कल के दिन तेरी जिंदगी बदलने वाली है। इट्स एन अपॉर्चुनिटी सेंट बाय ऑलमाइटी योर वे। मेरा ये मानना है, हर किसी को ना अपॉर्चुनिटीज भी नहीं मिलती। अगर मिल भी रही होती है ना, मैं हारूं या जीतूं, मुझे वो अपॉर्चुनिटी भी मिल रही है कि मैं ये जा पा रहा हूं, आई एम ग्रेटफुल फॉर इट। बी ग्रेटफुल कि यार मुझे अपॉर्चुनिटी मिल रही है, आई एम एबल टू compete for the best institutes in the country. I have already become a doctor. I'm grateful for it. I will do it for my parents. I will make them happy. I will do it for my teachers. My teachers are patting my back. वो मेरे पीछे खड़े हैं, उनकी सपोर्ट, उनकी ताकत तुम्हारे साथ है, तू कर लेगा। बहुत ज्यादा क्वेश्चन लीव मत करना, पहले ब्लॉक में गड़बड़ हो जाएगी। शुरू से टाइम पे जाना,
इफ इट इज अ डायरेक्ट क्वेश्चन, गो विद इंस्टिंक्ट, डोंट ओवरथिंक। बहुत ज्यादा बनाने की कोशिश मत करना, एम्स ने पूछा तो ऐसा होगा वैसा होगा, जो डैम्स ने बताया वही होगा, ठीक है। एलिमिनेट करना ऑप्शंस को, 2 चॉइस आने के बाद सब्जेक्ट पिवट करके देखना है, शायद अच्छा गेस कर पाऊं, एजुकेटेड गेस करना है। एंड मोर देन वन आंसर के अंदर इनिशियली जो सही लग रहा है उनको सही मान लो, ज्यादा मत सोचो, फिर ऑप्शंस देख के फिर उसके ऊपर आना है। इट इज Okay. ऑलवेज पॉसिबल टू प्ले द मैच ऑफ योर लाइफ। मैं एक चीज आपको कहना चाहूंगा कि कई बार ना क्या होता है कि मतलब मैं तुमसे क्या मांगू बताओ, मैं तुमसे एक ही चीज मांग रहा हूँ, ठीक है। तुम हो सकता है सबसे अच्छा ना कर पाओ, ठीक है, हो सकता है ऐसा ऐसा हो सकता है, मैं ओके हूं उस बात से, क्योंकि यार सबसे अच्छा करना भी, तुम्हें क्या पता बाकी क्या कर रहे हैं, लेकिन तू अपना बेस्ट करके आ सकता है। कल के दिन में तुम ऐसा पेपर देना जैसा तुमने पहले कभी ना दिया हो, गिव योर बेस्ट। पेपर के बाद वापस आके मेरा हर बच्चा मुझे एक ही बात बोलेगा जो लिखना है अभी कमेंट्स में, क्रिएट नो रिग्रेट्स। रिजल्ट आए या ना आए, मेरा कोई भी बच्चा रिग्रेट्स लेके नहीं आएगा, नो रिग्रेट्स, Okay. अटेम्प्ट 90 प्लस। Yes, absolutely. Attempt 190 plus. If you feel the difficulty level is slightly higher, still 180 plus. Okay. But other than that, everyone should try and cross 190. Yes. Acha, what should be the tips for tomorrow morning? Okay. So number one, do not forget to put your alarm. A lot of you are in a different city, in a different environment. Maybe the room is different. Maybe, your morning signals are not the same. So remember to put the alarm well in advance. Okay. Second, please remember that in the morning, if you are used to having a cup of coffee, no more than 1 or 2 cups. It gives you a lot of anxiety. Okay, so no more than 1 or 2 cups of morning coffee. सुबह क्या देख सकते हैं? This is where I will place our alpha cards. The alpha cards are amazing. Very quick review, hardly 15 minutes per subject. Visual aids है. They will have things that the AIMS people are fond of asking. Alpha cards नहीं is भी your पढ़ेंगे तो भी morning चलेगा, रिलैक्स game. भी कर सकते हैं, लेकिन अगर कुछ लग रहा है, कुछ बहुत एंजाइटी हो रही है, फ्लिप करना है, कुछ या करना बिना है, करे भी एंजाइटी होती है, राइट? अल्फा कार्ड्स, दे हैव इमेजेस, they have POGs, they have maneuvers, they have surgical classifications, they have fractures, they have milestones in pediatrics, everything. Alpha cards is the morning game. Okay, just go through them. I'm telling you, it won't take 15 to 20 minutes per subject. 15 the upper limit hai. Yes, and that will help you review everything from derma to FMT to whatever you need. It is going to be there. ठीक है? हमने बोला आज करने हैं एम्स कैप्सूल और INICET PYT PDF, these two tomorrow. Alpha cards tomorrow morning. आज एम्स कैप्सूल और INICET PYT PDF. ठीक है? और एक ना मतलब मैं तो सिर्फ यही जानता हूँ, मुझे ये पता है कि जिंदगी में ना बहुत बार ऐसा होगा कि अपॉर्चुनिटीज दे कम टू यू एज प्रॉब्लम्स। अपॉर्चुनिटीज डोंट कम टू यू एज अपॉर्चुनिटी, दे मैस्करेड एज अ इवेंट। मतलब कल तेरी जिंदगी की बड़ी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन वो अपॉर्चुनिटी की तरह नहीं आ रही होती। वो ऐसे नहीं बोल रहा होता, ऐसा एग्जाम आके नहीं बोल रहा मैं अपॉर्चुनिटी है, वो एक प्रॉब्लम की तरह आ रहा होता है। पीपल लुक एट एग्जाम्स एज प्रॉब्लम्स, people look at situations as problems, winners look at them as opportunities। ये माइंडसेट तुमने आज बटन दबा के चेंज करना है। यू आर गोइंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी। ये तो उससे कुछ छीनने के लिए नहीं आए हैं, ये कुछ देंगे। इफ आई डू वेल, आई हैव अ पॉसिबिलिटी टू बी इन द एम्स, मैं बड़े इंस्टीट्यूट में जा सकता हूँ, इन द PGI चंडीगढ़, जिपमर जा सकता हूँ। इट्स एन अपॉर्चुनिटी कमिंग अवे, गो विद अ पॉजिटिव माइंडसेट। एक आखिरी बात ना जो मैंने कभी कभी फील करता हूँ, जब आप एग्जाम के दिन जाते हो, लेट मत होना। लेट होते हो ना तो क्या होता है, बहुत सारी भीड़ अचानक से दिखाई देती है। सपोज मैं लेट पहुंचू ना, तो वहां पे गाड़ियां पार्क हो रही हैं, भीड़ लगी हुई है, लोग दिख रहे हैं, ओवरवेलमिंग हो जाता है। मैं हमेशा क्या करता हूं, मैं हमेशा मेरे हर एग्जाम में, मेरी क्लास में भी अगर आप देखना, मैं आधे घंटे पहले ही आ जाता हूँ। मैं ना जब आता हूँ तो बच्चे नहीं आए होते, उसी तरह आप भी एग्जाम में पहुंचे ना, जब कोई आया ना हो, धीरे धीरे लोग आते हैं। यू नेवर फील एंशियस बिकॉज द क्राउड बिल्ड्स ऑन यू। तुम देर से आते हो, अचानक से भीड़ देखते हो, घबरा जाते हो। जब तक पेपर देने आते हो, पहले 10 क्वेश्चन में हार्ट रेट नॉर्मल ही नहीं हुआ होता,
गो स्लो, जल्दी पहुंचो, टाइम से पहुंचो, अच्छा सा कोना पकड़ के बैठ जाओ वहां पे, और लोग जो भी पढ़ रहे होंगे घबराना नहीं, उसमें से क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन तेरे डैम्स के नोट से आएगा, घबराना नहीं, ठीक है। एंड यू नो मॉर्निंग में प्लीज डोंट गो एम्प्टी स्टमक, ओके, क्योंकि इट इज अ पेपर, इट इज अ स्ट्रेस and you would need the energy, so please don't go empty stomach, but also do not take a very heavy meal. Yes, take a balanced kind of a meal, something which fills your tummy as well, but at the same time does not give you the drowsiness. That's not what we want, right? Also, hydrate yourself well, okay. Please ensure that you're not dehydrated, because everything then deviates you from your focus. So hydrate करके जाओ, 1 से 2 या उससे ज्यादा कॉफी नहीं लेना है, खाना खा के जाएंगे, सारे डॉक्यूमेंट्स रात को ध्यान से संभाल के रखेंगे, अलार्म लगाकर उठेंगे, ठीक है, टाइम पर पहुंचेंगे, यस, जैसे सर ने कहा। एंड सुबह सुबह वी विल नॉट फॉरगेट टू टेक द ब्लेसिंग्स ऑफ आवर पेरेंट्स एंड द ऑलमाइटी, ठीक है। सो दही चीनी खा के जाओ, कुछ मीठा खा के जाओ, और ये लंबी लंबी सांस लेके बोलो that I am going to do well, come what may. Yes, can you all say that to yourself? Yes. So just जब भी स्ट्रेस लगे आंखें बंद करो, ठीक है, याद करो हमने बोला है that you are going to come out as winners. So take a deep breath and tell yourself, I'm going to do well. Okay? हिम्मत रखेंगे, घबराएंगे नहीं, यू हैव एन अपॉर्चुनिटी, यू आर गोइंग टू डू वेल, कम व्हाट में, तुम जीतोगे, और तुम जीतोगे नहीं तो अपना टाइम लेके आओगे, तुम अपना टाइम लेके आओगे, जिसके लिए मैंने तुम्हें शुरू से सिखाया है, इसी बात के लिए तुम जब से इतने साल से डैम्स में बैठे हो, मैं तब से एक ही बात सिखा रहा हूँ, अपना टाइम आएगा नहीं, अपना टाइम अपन खुद लाएगा। Yes, absolutely. And on that note, I think we are going to say a goodbye to you all until we meet you tomorrow. Yes, post-exam, we will be there to share your, emotions and whatever you want to say out. So we'll be there. We'll be doing a recall as well, just to be with you. No other reason. ठीक है? So हम खड़े हैं आपके बाहर, एग्जाम के बाहर, आपके लिए, आपके पीछे, आपकी पीठ थपथपाते हुए, and to tell you that we have full faith in you, in your abilities and what you can achieve. So go win it, come back, and then we'll celebrate together as well. और एक चीज मैं बता देता हूँ जिससे थोड़ा प्रेशर कम हो जाएगा, तेरे पेरेंट्स, तेरे टीचर, दे लव यू इररिस्पेक्टिव ऑफ द रिजल्ट। तो इसको इसी माइंडसेट से पेपर देने जाना है। ये पेपर तेरे रिश्ते नहीं बनाएगा, एक अपॉर्चुनिटी है केवल रिजल्ट के लिए। हम सब तुझे प्यार करते हैं, उसको मत सोच कि यार मेरे रिजल्ट आएंगे तो भी पेरेंट्स मुझे प्यार करेंगे या मेरे टीचर। हम वी लव यू इररिस्पेक्टिव ऑफ द रिजल्ट। तेरी सेल्फ वर्थ, तेरा प्यार इस बात पे डिपेंडेंट नहीं है कि रिजल्ट क्या आता है। जस्ट कीप इट इन माइंड, गो विद अ कूल माइंड, गो विद अ कूल माइंड, डोंट टेक टू मच स्ट्रेस। तू जीतेगा। आई विश यू ऑल द बेस्ट बेटा, आई विश यू ऑल द बेस्ट। एंड आज मेरी इवनिंग प्रेयर जब भी मैं जोत जलाऊंगी इज गोइंग टू बी फॉर एवरीवन। सो विद फोल्डेड हैंड्स आई एम गोइंग टू प्रे that all of you do really well, you are happy and satisfied with your performance. ठीक है? So as I'm going to say this, remember I told you कि हम पीछे पीठ थपथपा रहे हैं और बोल रहे हैं विजयी भाव। ठीक है? So take care everyone. Just go rock the exam. Keep rocking. अपना टाइम अपन खुद लाएगा। खुद लाएगा। Take care everyone. Love and blessings to each one of you out there.